So we'll be having a good morning all and good afternoon rather. And we in a series of good, replicable and innovative practices in tobacco control. So we have this topic today, the strategies to promote tobacco cessation among the students. And the presenter is Ms. Nikita Sood. She is head of the department counseling and senior cell in Learning Path Mohali. Earlier she was in some other school, but now she's in Learning Path school. And so I welcome Dr. Nikita Sood for this presentation. The presentation, the name has been a little changed to sensitizing students about innovative practices for tobacco control. So I'm delighted to welcome Ms. Nikita Sood, head of the department. As I've already told you that she is the HOD of counseling and senior cell in Learning Path Mohali. And all the learned participants are welcome. So Nikita जी मैं इतना ही आपके ना इंट्रोडक्शन देता हूँ. थैंक यू सर, बाकी मैं करती हूँ. थैंक यू सो मच. So we can start with the presentation. Sure. Thank you so much, sir, for this wonderful introduction. And as sir said, my name is Nikita Sood. It's been 14 years of working with students. And in my last organization, I started this project in sync with Cypher. And Dr. Rakesh has been guiding me. I am very thankful to him. And I welcome all the participants who have spared their precious time and come here to join this and understand. I would like to share how I started this journey. So as being a school counselor, heading the team of counseling, I used to receive so many concerns that students would share with me, but they wanted things to be confidential. There were earlier things about, that they wanted to taste these things, or they feel that they are accepted by the opposite sex. They had feelings that, if they will not try, they are going to missing out on something. So there were concerns which we felt that now there is a need wherein we should actually start a drive which helps all the community to come out of the use of tobacco as well as other products which harm them. And I myself experienced certain incident in my family wherein someone suffered from cancer, and I experienced that how a caregiver is impacted, though it was not because of the use of tobacco, but still as it leads to cancer, there are so many studies. So I wanted to do something in this and sensitize students so that when they grow up, or with their helpers or with the other staff, they have their drivers, their security guards, even if anyone is using, so they may guide everyone that how it is going to impact their health. So through my experience, I have learned that use of substance in adolescent has been prevailing. They feel that they are accepted and they look better. They feel that they're physically, emotionally, socially accepted. They present it on social media a lot that we are using such products and to gain fame. And students share this because they know that whatever things are being shared with the counselor, it is completely confidential. So they do not hesitate. They were quite open in sharing these things. And there were other informations also that from where they are buying these products. And I think it was a very good project, and we were able to incorporate certain measures as per the guidelines which from TOEFI, which were shared again by sir with us. So earlier I was not aware of certain things, and I also got aware and created awareness further in the students. So if I feel that if each and every school in India takes this initiative, at least if you are able to curb this menace in that particular area, it is going to help a lot in the society. And obviously when you talk about alcohol, it is alcohol or any substance, it is taken as a fashion. It is portrayed as Nikita ji, please let me know when the slides are to be changed. Hanji, hanji, hanji. So it is said that it is acceptable and everyone does it. So this was a very general statement. If you try to sensitize them, I must tell you that it was not an easy journey. The parental attitude, because the parents at home, they were consuming alcohol in front of the children, and tobacco use was there. There were certain drugs, prescribed drugs, which we got to know, and there was power of influence, because when the economic status is quite high, so you cannot intervene that easily with the particular people who own that status. So as I worked in different projects, you can see I have been working in adult education, guiding females about the menstrual hygiene. Mental health has been always my forte.
So there was a lot of bullying concerns. So anti-tobacco was also a campaign which I initiated, and others are there. If Rakesh ji would come to the next slide. So can we Okay. shift the slide, please? You want the further one? Yes, yes, yes. This one? Yes, this one I'm good. Okay. That was all about me. So the projects I have worked in. So here you can see that we started by inviting people, and this was the first session wherein we started and created awareness about how tobacco can impact your life, what health issues you may suffer. So there were many students who owned up that in their families there are people who suffer from respiratory concerns, and they were very open about it. So we were able to gauge that yes, we might 50% support from the students this campaign, and students took a pledge that at least consume tobacco, and they will also guide others about the impact of tobacco on health. So the counseling cell, it organized a session with for the students of grade 9th and 10th, as they were the senior most. And this was done for them so that they can take it further. Be sure that it is very difficult to cater to the entire school at once. So earlier we felt that hindrance, but we decided that, we will do it in groups. And at some point of time, we will be able to cover each and every child. The trap of drugs will come to you, and you will not even realize that how it is impacting you, your health and your life. So this slogan was there, the message was given that tobacco is a villain. We also invited the department, ECRTC department people from PGI to our school, and they were also there. They also rewarded the students who spoke really well and took that initiative further. It was also done to ensure that students get some reinforcement. Nikita ji, I'm having a little problem with the slide presentation. Are you able to see? Yes, I am. You can go to the next one. I am able to see. Okay. Is it the next one now? Maybe the internet connection. I'm not sure about. There is a problem. Can you just? I can try again. Okay. Now? Sir, No, I want to tell something. Is it solid? Yes, it's changed. Okay. Hello. Thank you. Yeah. Sir, it's a request if possible. Then please speak in our native language. In Hindi. Okay. I would love निकिता जी अब थोड़ा मिक्स कर दो। ठीक है जी, ठीक है, मैं हिंदी में बिल्कुल बात करना चाहूंगी। तो जैसे कि मैंने बताया, हमने सेशन से स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया कि बच्चों को हम सेंसिटाइज करें। 9वीं और 10वीं के ग्रुप से हमने स्टार्ट किया, क्योंकि उस टाइम जो हमारा स्कूल था सीनियर सेकेंडरी नहीं था, सीनियर विंग तक ही था। तो 9वीं के और 10वीं के बच्चों को हमने रोल मॉडल्स बनाया, उनको अप्रिशिएट किया, उनको रिवॉर्ड्स दिए जो चाहते थे बच्चे इनिशिएटिव लेना और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। और हमने पीजीआई से भी लोगों को बुलाया सो दैट वो आके बताएं कि इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ पे क्या होता है, क्योंकि बच्चे उस एज में होते हैं जो एक करता है वही सब उस चीज को फॉलो करते हैं। तो और इस टाइम ये एज ऐसी होती है कि वो हार्मोनल चेंजेस से गुजर रहे होते हैं और वो बहुत जल्दी फीमेल्स की अट्रैक्शन को पाना चाहते हैं। बहुत कॉमन हो चुकी है ये चीज, बहुत अर्ली फ्रेंडशिप्स। तो हमने उस चीज को अंडरस्टैंड करके समझा कि ये बहुत जरूरत है इस चीज की। हमने स्कूल में हेल्थ मॉनिटर्स बनाए। इसकी मीटिंग काउंसलिंग रूम में करी गई, क्योंकि काउंसलिंग रूम एक कॉन्फिडेंशियल जगह होती है जहाँ पे कैमरास नहीं होते हैं और सब कुछ जो वहां पे बात होती है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल होती है। तो हमने काउंसलिंग रूम का यूज किया ताकि ये बात स्प्रेड ना हो। हमने हेल्थ मॉनिटर्स बनाए स्कूल में, जिन्होंने आके हमें बताया, हमें अवेयर कराया कि मैम कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे टोबैको की सेल होती है, या किसके घर में ज्यादा इस तरह का यूज होता है, चाहे वो अल्कोहल हो चाहे और किसी तरह के ड्रग्स हो। कार्ड्स दिए हमने बच्चों को, सेल्फ इवैल्यूएशन पेरेंट्स को भी दिए, ताकि हमें पता लगे, जिसमें क्वेश्चंस थे कि आपको कब अवेयरनेस आई इस बारे में, आपने कब से स्टार्ट किया। तो हमने जितना भी स्कूल का स्ट्रेंथ थी, 1000 बच्चे थे हमारे पास, हमने सबके साथ ये चीज शेयर करी। निष्ठा जी, आई होप आई एम फाइन। अब ठीक है? निकिता जी, are the नहीं, slides अभी moving? चेंज नहीं हुई राकेश जी, अभी जी नहीं। मैम, अभी जी देखो। मैम, थैंक यू। अभी हुई नहीं चेंज? नहीं चेंज नहीं हुई राकेश जी। अभी देखो। नहीं, चेंज नहीं हुई, वही वाली स्लाइड है। तो मेरे को एक सेकेंड,
पता नहीं क्यों ये या बीच मैं में। अपनी प्रेजेंटेशन यहीं खोल लेती हूँ। नहीं 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 नहीं, अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी। नाउ यू आर एबल टू सी। हाँ जी, अब दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड चाहिए मुझे इससे। ठीक ठीक ठीक। अब देखो। हाँ जी। तो जब ये इससे पहले वाली, हाँ जी ये वाली सर, राकेश जी थैंक यू जी। हाँ जब हमें ये चेंज लाना था तो बहुत सारी हमने इस तरह की चीजें फेस की। एक डर भी था मन में कि आप ओपनली इस बारे में बात कर रहे हैं। कुछ ग्रुप्स भी थे जो कि लिंक्ड थे, जहां पे ये सेल परचेज होती थी, और भी तरह के ड्रग्स थे। तो वो फियर ऑफ सिक्योरिटी भी आया। बच्चे भी कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे डरे लेकिन कुछ बच्चों ने साथ देने की हिम्मत दिखाई और वो हमारे साथ जुड़े इस चीज में। तो हमने स्कूल में रैली भी निकाली। हमने रैली निकाली और हमने बहुत जोर से स्लोगन्स हमने रेज किए। सिर्फ स्कूल में ही नहीं, हम सड़कों पे उतरे। हमने आसपास की कम्युनिटी में जो कॉलोनीज बनी हुई थी वहां पे भी बच्चों ने मार्च किया और रैलीज निकाली। वो न्यूज़पेपर में भी आया और बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने तरह तरह के पोस्टर्स बनाए रैली के लिए, खुद स्लोगन्स डिजाइन किए और टीचर्स ने उनके साथ मार्च किया सड़कों पे। तो पूरी वो 2-3 घंटे की ड्राइव थी जिसके लिए हमने परमिशन भी ली पुलिस डिपार्टमेंट से कि हम ये एरिया कवर करेंगे। हम 29 में ऑफिस बना हुआ है पूरा, ट्रिब्यून ऑफिस। इट्स अ बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है। हम वहां तक भी गए और बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिली कि ये स्कूल इस तरह आगे आ रहा है इस चीज को रोकने के लिए। जब लोगों को पता चला तो हमें इंफॉर्मेशन मिलने लग गई कि कहाँ पे इसकी सेल होती है, कौन से लोग हैं बीच में इन्वॉल्व। तो आप देख सकते हैं फिर स्कूल के बच्चों को हमने ये सब कुछ अलग अलग क्लासेस के साथ किया। तो आप देख सकते हैं बच्चों ने पोस्टर्स बनाने शुरू किए। ये बिल्कुल हाथ से बना हुआ, पेंटिंग से बना हुआ पोस्टर है। मेरे पास बहुत सारे पोस्टर्स आए। बहुत बच्चों ने, जो हमने उनको एक एक पोस्टर बोला था बट बच्चे 3-3 4-4, तो हमारे पास कम से कम 1000 पोस्टर ऐसा बन गया था जिसपे बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई। एक तो आर्टवर्क उनका निकल के आया, दूसरा उन्होंने अपनी फीलिंग्स शेयर की, अपने इमोशंस को उन्होंने पेपर के ऊपर डाला कि मैम हम नहीं चाहते कि ये चीज हो। आप देख सकते हैं कि जैसे कि टॉफी की गाइडलाइंस हैं, उसके बाद हमने टोबैको अपने इंस्टीट्यूट को, जब एक्टिविटीज हो गई और हमने स्टाफ से भी वो प्लेज भरवाया कि आप इस तरह का सेवन नहीं करेंगे, अगर आपको पता चलता है आप रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने ये साइनेज बोर्ड लगाए और 100 मीटर यार्ड स्कूल के बाहर भी, स्कूल के अंदर ही नहीं बाहर भी, हमने इस तरह के जो आप देख रहे हैं प्लेकार्ड्स, ये भी हमने डिस्प्ले में लगाए कि यहाँ पे सिगरेट, तंबाकू, इस तरह की कोई भी चीज। फिर मैंने इंस्पेक्शन स्टार्ट करी और स्कूल में घूम घूम के हम सुबह देखते थे कि कुछ भी इस तरह की हमें ना मिले। स्कूल के बाहर आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट साइड पे है वो आउटर एरिया है, राइट साइड पे इनर एरिया है। तो जो ग्रुप डी स्टाफ होता है, जो हमारे हेल्पर्स होते हैं, उनको हमने साथ में लिया। और वो लोग जो खुद इसको यूज करते थे, सिगरेट, शराब, तंबाकू को, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। उन्होंने आके शेयर करना शुरू किया कि हमारी ये चीज छुड़वा दीजिए, हम करते हैं इसका और हम इससे निकलना चाहते हैं। तो लोग धीरे धीरे, इतना आसान नहीं था लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही लोग हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ते गए। और हमने उन लोगों से उनकी काउंसलिंग करके, उनसे लिखवा के कि आप इस चीज को छोड़ोगे, उनको आगे इंस्टीट्यूट्स में रेफर करना शुरू किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल की फिजिकल इंस्पेक्शन हुई, टीम आई हमारे पास, उन्होंने चेक किया पूरा जो जो भी हमने काम किया है। हमने कुछ लोगों को प्रेजेंटेशंस दिखाई, कुछ ने पोस्टर्स बनाए। आप मेरे साथ देख सकते हैं हमने एक टीम बनाई टीचर्स की, क्योंकि मेरे अकेले के लिए काम करना तो शायद पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने अपने साथ 5-6 टीचर्स लिए जिन्होंने मेरा साथ दिया इस चीज में। कोई कंप्यूटर से था, कोई ड्राइंग से था, कोई साइंस का था, कोई स्पोर्ट्स का था। लेकिन हमने मिलके एक इस इनिशिएटिव को सोचा कि हम सक्सेसफुल बनाएंगे और इस स्कूल में या इस स्कूल से जुड़े किसी भी पेरेंट, दादा दादी, नाना नानी या उनके रिश्तेदार, हम सब में इतनी अवेयरनेस की नेक्स्ट टाइम वो इन 3 चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे। उनको पता होगा कि अगर हम ये कर रहे हैं तो हमारी हेल्थ खराब होगी, और हेल्थ खराब होने के बाद जो इम्पैक्ट आता है, जो केयर गिवर्स पे इम्पैक्ट आता है, जैसे कि कैंसर के बारे में बहुत बात होती है, लेकिन जो केयर गिवर्स पे इम्पैक्ट आता है उसके बारे में भी बात हुई। तो सरप्राइजिंगली बहुत बच्चे हमारे पास वो भी आए जिन्होंने शेयर किया कि उनके घर में लोग हैं जो यूज करते थे और अब वो बीमार हैं और वो पीजीआई या 16 से ट्रीटमेंट ले रहे हैं उस चीज का और हॉस्पिटलाइज हैं। तो उन्होंने भी साथ देने का वादा किया और वो जुड़े हमारे साथ। हमने टोबैको मॉनिटर्स बनाए और हेल्थ, जो मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ, करी पूरी एक फाइल
ताकि हम रिकॉर्ड रखें कि हम कितनी मीटिंग्स कर रहे हैं। क्योंकि कुछ भी शुरू करना, मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि बहुत आसान होता है, लेकिन उसको मंजिल तक ले जाना एक एम और फोकस होना चाहिए कि आप चाहते क्या हो। तो हमारा एम और फोकस क्लियर था। तो हमने उन टोबैको मॉनिटर्स जो जो वो इंफॉर्मेशन देते गए, वहां पे जा जाके जिसको हम देखा, वहां पे चेक किया, और जो बेचने वाला था उसको भी बोला कि आपको ये नहीं है, यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं। अपने स्कूल के ग्राउंड्स को हमने खुद चेक किया, है ना। तो रैली आप देख सकते हैं, मैंने मेंशन करी हुई है। और हमारे स्कूल के ये बच्चों आप चलाना चाहते हैं यूट्यूब वाला? मैं चलाना चाहती हूँ सर, मैं चाहती हूँ सब अच्छा, देखें। ओके। ये पहली ओके। बार स्कूल में हमने एक रैप सॉन्ग अलाउ किया, जो कि बहुत मुश्किल था मेरे लिए परमिशन लेना, लेकिन इस बच्चे ने, जिसको गाने का शौक था, उसने ये सॉन्ग तो बनाया निकिता जी, YouTube के ऊपर। ये सर ठीक इसकी आवाज कर नजर दीजिए, आ रहा मैं है म्यूट आपको? कर लेती हूँ। अच्छा, आप मैं म्यूट कर रही हूँ, आप इसकी आवाज आवाज। नहीं आ रही? नहीं, हाँ, आवाज नहीं आ रही, या तो आवाज नहीं आ रही। इसको डायरेक्ट आप यूट्यूब पे डाल के भी, वैसे तो यूट्यूब भी खुला हुआ है जो मैं यहाँ देख रही हूँ। सर आप जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, डॉक्टर राकेश सर, जब स्क्रीन शेयर कर रहे हैं नीचे एक साउंड वाला बॉक्स आता है, उसको टिक कर दीजिए, फिर वो साउंड के साथ प्ले होगा। नमस्ते राजीव जी, कैसे हैं आप? बहुत हाँ देर जी, बाद आवाज नमस्ते सुनी मैम। आपकी। जी जी, थैंक यू मैम। राजीव, तो बता सकता है मेरे को दोबारा हाँ जी, हाँ जी सर। आवाज क्यों नहीं आ रही? निकिता मैडम, ये आपका आप लिंक मेरे को हेलो, फॉरवर्ड करेंगे अगर आपके पास है तो? मैं कर रही हूँ जी, अभी कर रही हूँ आपको मैं मुझे फॉरवर्ड। मैं फॉरवर्ड कर स्टॉप दीजिए शेयर अभी। करूं? हाँ जी, हाँ जी सर, स्टॉप शेयर कर दीजिए। नीचे कोई बॉक्स है वो कह रहे हैं वैसे ना। एक सेकंड बस, मैं आपको शेयर कर रही हूँ। हाँ, अब देख लो, कर सकते हैं तो। हाँ जी सर, जस्ट अ मिनट सर। हम्म। अच्छा, तू ही कर रहा है राजीव? अब मैं करता हूँ सर। हम्म, डॉक्टर निकिता भेज रहे हैं मेरे को अभी। ठीक है। निकिता मैडम, मैं जस्ट अ मिनट। चलो निकिता जी, अपनी तरह आप बाकी स्लाइड बता दो। अच्छा, ये लास्ट ही आपका ना? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा अच्छा, ये लास्ट। सर इसको फॉरवर्ड करिएगा प्लीज एक बार, राकेश जी को, आप राजीव जी को फॉरवर्ड करिए, मैंने आपको व्हाट्सएप किया। नहीं राजीव, तेरे को नहीं मिली? अच्छा, मैं करता हूँ, एक second। हमने इसके साथ ऐड करना चाहूंगी, हमने इवेंट्स भी किए। सुखना लेक पे हमारा एक इवेंट हुआ, और हमने पार्टिसिपेट किया। जो जो भी हमें इनविटेशंस आए, हमने बच्चों को मौका दिया, बच्चों ने वहां पे डांस परफॉर्मेंस दी। ये जो आपके साथ अभी सॉन्ग शेयर होगा, हमने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी ताकि वो इंजॉय भी करें इस चीज को, एक बर्डन की तरह ना समझें, और समझे कि ये कितना जरूरी है आने वाले टाइम में अपनी हेल्थ पे इंपॉर्टेंस देना। हमने गुड डाइट का, मैं इसमें मेंशन नहीं कर पाई हूँ, पर हमने गुड डाइट, हेल्दी डाइट के बारे में भी बात करी। हमें बच्चों के टिफिन भी चेक करने शुरू करें, ताकि हमें पता रहे कि हमारे बच्चे डाइट में क्या खा रहे हैं। क्योंकि मैंने एज अ काउंसलर ये ऑब्जर्व किया कि जो बच्चे भूखे रहते थे, ज्यादा देर खाना नहीं खाते थे, या उनको लगता था कि हमें पतले रहना है, जो जैसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हम बच्चों में देखते हैं आजकल बॉडी इमेज को लेके, तो वो बच्चे ज्यादा इन चीजों में थे क्योंकि वो टाइमली डाइट को फॉलो नहीं कर रहे थे। ये मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन थी पिछले 8 साल में एज अ काउंसलर, कि जो बच्चे, उनको पता ही नहीं था कि उनकी आंखों में डार्क सर्कल हो रहे हैं, या उनकी वीन्स भी दिखने लग गई हैं, देयर लिप्स आर टर्निंग ब्लैक, ये सब चीजें वो रियलाइज ही नहीं कर रहे थे, और वो इन चीजों में थे। और काम करने के बाद उनको काफी अवेयरनेस आई, और उन्होंने प्लेज लिया, उस चीज को रिकॉर्ड किया गया, और उन्होंने जाके अपने घर में भी इस बारे में बात करी। तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी हमें मिली, कुछ पेरेंट्स भी सामने आए कि मैम अगर इस सेक्टर के अलावा, चंडीगढ़ के इस सेक्टर के अलावा आप कहीं और भी चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ये चीज आगे लेके जाएं। तो बच्चों को इन्वॉल्व करना इजी नहीं था, मैं यही कहूंगी। कहीं ना कहीं एक फियर भी था कि पेरेंट अपोज भी कर सकता है। तो हमने सब तरफ हर चीज को अपने दिमाग में रखा कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और
पॉजिटिव अगर होगा तो वो तो हमें पता ही था कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। और सर की सपोर्ट से, राजीव जी की सपोर्ट से, हमारे स्कूल हेड मिसेस वंदना सक्सेना, स्कूल प्रिंसिपल, उनकी सपोर्ट से ही मैं ये सब कर पाई। अदरवाइज मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल होता, क्योंकि मैं खुद सोसाइटी का एक पार्ट हूँ, इतने साल काम कर रही थी, पर मुझे नहीं पता था कि ये मेरी ही फील्ड से कहीं ना कहीं लिंक हो जाएगा। और एज अ काउंसलर जो प्रॉब्लम्स मेरे पास आती हैं, तो कितनी ही प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व कर सकती हूँ अगर मैं बच्चे को ये सिखा दूं कि ये चीज गलत है और इस चीज को नहीं करना। उनकी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की जो प्रॉब्लम्स थी वो खत्म हुई। बच्चे लोनलीनेस की वजह से डिपेंडेंट हो रहे थे, तो वो भी चीज खत्म हुई इस चीज की वजह से। तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। अच्छा निकिता जी, हम ना ये स्किप कर देते हैं, मैंने शेयर कर लिया है, ये यूट्यूब है ना, ठीक है, ठीक ये है लिंक सर, कर आप दिया। तो जो ग्रुप राजीव बनाएंगे जी, आप सबके साथ शेयर ये कीजिएगा। किया हुआ है, ग्रुप बना हुआ है हमारा, तो ठीक है, उसमें मैंने ठीक है। शेयर कर दिया ये। हाँ ठीक जी, है ना? ठीक है सर, तो बस जो मैं लोग भी अभी, नहीं कहूंगी। हाँ हाँ हाँ, तो राजीव हमने ना ये ग्रुप में शेयर कर लिया है। ठीक है। ओके तो सर। हाँ, तो निकिता जी आपका कुछ रहता है अभी? नहीं सर, थैंक यू सो मच। Okay, then थैंक we यू can सो ask for मच। questions. Rajiv, the forum is open for you. You can may ask question answers. Thank you, sir. So first of all, Nikita Sood ma'am, thank you for this presentation, and this is a wonderful case study as implemented at one school, and it's also a learning for other people who may be going to start this type of intervention in their area at their school. So first of all, thank you. Any question from the participant side to Nikita Sood regarding this intervention? Yes, you may Yeah, even yes, give your comments. If not questions, you may just give your comments. yeah. So In Davinder ji, case there's no कोई है कोई questions, comment? नहीं ये सर, मैडम बहुत अच्छा this is कर रहे हैं सर, जो इन स्कूल्स का इनिशिएटिव, जो भी इन्होंने इनिशिएटिव लिया। इवन वी आर हाँ, ट्राइंग टू हैव दिस थिंग विद द स्कूल टीचर्स। वी आर okay, प्लानिंग टू हाँ वन वर्कशॉप फॉर दैट। हाँ तो हाँ। आपको इंटीमेट करेंगे। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव फॉर द स्कूल। नहीं, ये निकिता जी को बुला लो, इनका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना, तो she can also be called for सर that. देख लेते हैं, एक बार बात करके अभी चला के फिर देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो अगर नहीं क्वेश्चन तो मैं अपने कमेंट्स दे दूं फिर, राजीव? yes, sir, yes, sir. ओके। तो Yeah. निकिता जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस आपने शेयर किए, दैट इज एक्सीलेंट, एज अ काउंसलर एंड फॉर ड्रग्स एंड टोबैको इन स्कूल्स, इन स्कूल स्टूडेंट्स एंड आल्सो विद द पेरेंट्स, तो उनकी भी आपने काउंसलिंग की है, दैट इज एक्सीलेंट। तो जो लोग सफर कर रहे हैं किसी डिजीज से बिकॉज ऑफ द टोबैको एंड द ड्रग्स, दे आर मोर एमिनेबल टू काउंसलिंग। मेरा मतलब है कि वो जल्दी शायद ठीक हो जाते हैं और काउंसलिंग के बाद में भी टोबैको फ्री या ड्रग फ्री हो जाते हैं। तो जिनको कोई डिजीज नहीं है तो उनको थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ता होगा। तो ये आपने जो इनिशिएटिव है, यू स्टार्टेड वेरी रिसेंटली, मतलब ये 2 साल का इनिशिएटिव है सिर्फ, जुलाई 2022 से, और आपने इनिशिएटिव शुरू किया 9th and 10th क्लास के लिए, दैट इज द मोस्ट वल्नरेबल आई मीन एज ग्रुप। बिल्कुल सर। हाँ जी। तो ये आपने ये भी बताया कि पीयर प्रेशर इज द मेन थिंग बिकॉज ऑफ विच पीपल दे स्टार्ट यूजिंग टोबैको और ड्रग्स। और ये भी आपने बताया कि क्योंकि हार्मोनल चेंजेस होती हैं बच्चों में, तो कुछ वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी उनकी चेंज होती है, तो स्टूडेंट्स जो टीचर्स का ये भी फर्ज है कि वो भी जो इशू है वो भी रिजॉल्व करें। तो आपने ये बताया था कि स्लोगन रेजिंग आपने स्कूल के अंदर भी की और कम्युनिटी में भी की। उससे ये है कि जो आपके क्लास 4 एम्प्लॉयज वगैरह जो ज्यादा का चांस है यूज करने का टोबैको ड्रग्स, तो उनमें ये शायद कोई आदत कईयों में कम हुई होगी या शायद खत्म भी होगी। और आपने ये भी बताया कि टॉफी गाइडलाइन, टोबैको फ्री एजुकेशन गाइडलाइन, वो आप फॉलो कर रहे हो बिल्कुल। सो बिल्कुल फर्मली आप फॉलो कर रहे हैं एंड दैट इज बिल्कुल गुड। सर। एक तो सर ऐड करना चाहूंगी, बॉडी इमेज इश्यूज भी बच्चों में मैंने पिछले कई सालों में देखा है। जो हाँ बच्चे खाना नहीं खाते और बॉडी इमेज को उनको बहुत कंसर्न होता है कि हम कैसे लग रहे हैं, तो हाँ लड़के जिनको लग रहा था कि हमारी तरफ गर्ल्स नहीं अट्रैक्ट हो रही, या लड़कियां जिनको लग रहा था वी आर नॉट अप्रोप्रिएट, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, तो वो हाँ इन हाँ, चीजों में ज्यादा थे। ये मेरी हम्म, ऑब्जर्वेशन थी, वो हाँ। इन चीजों में ज्यादा तो थे। ये भी आपकी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि
पेरेंट्स को आप गाइड करें कि क्या डाइट उनको लेनी चाहिए और क्या डाइट, जैसे फास्ट फूड्स है, ट्रांस फैट रिच डाइट है, वो नहीं लेनी चाहिए फास्ट फूड्स है। तो आई थिंक यू हैव टेकन अ वेरी गुड इनिशिएटिव। और मैं डॉक्टर देवेंद्र को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी ये कोई इनिशिएटिव अपने शुरू करेंगे अपने डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में, तो मेरे को भी बुलाएंगे, आपको भी बुलाएंगे। मैंने अपने आप इनवाइट कर श्योर लिया श्योर सर, श्योर सर, नहीं नहीं सर, डेफिनेटली। सो आई थिंक ये आज का जो सेशन था दैट वाज 30 मिनट्स ओनली एंड वी आर नॉट ऑन टाइम। तो अगर किसी को फिर भी अगर कोई कमेंट है या क्वेश्चन है दे कैन आस्क, अदरवाइज विल फिनिश ऑफ। तो रजीव जी, आप ना अपना वोट ऑफ थैंक्स आप कर सकते हैं। Yes, sir. So before that, if time allow, this video is ready to play if you allow. हाँ, कर दो, आप कर दो। Okay. बंद करो। Can we confirm the sound is here? Yes, it is. Yes, it is fine. ड्रग्स से सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। बंद करो नशे, कुछ मिलता नहीं ड्रग्स से, सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। कलम के जरिए मैं आया हूँ अब खोलने राज, बातें लगेगी दिल पे जैसे टूटते कांच। गौर करो करने आया हूँ मैं सीरियस बात, याद करना सारी बातें रख के दिल पे हाथ। नशा है बुरी चीज जो कि सब करने लगे, बिगड़ने लगे बच्चे बड़े और बूढ़े। ये घर वालों की इज्जत भी उतर जाती है साथ साथ, आजकल तो बच्चा भी डाल चुका है इसमें हाथ। माँ बाप को क्या पता क्या कर रहा उनका लड़का, क्यों छोटी बातों पे अब है वो भड़का। बंद करो नशे, कुछ मिलता नहीं ड्रग्स से, सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। बंद करो नशे, कुछ मिलता नहीं ड्रग्स से, सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। ये सब कुछ बेकार है, ये बड़ा माया जाल है, कैसे निकले इससे अब यही बड़ा सवाल है। नशे में घुल चुके हैं कुछ लोग इस समाज के, क्यों है सब ये करते ना किसी के पास जवाब है। सुख शांति सब नशा छीन के है ले चुका, किसी का कुछ ना जाना इसमें बस तेरा नुकसान है। I'm just telling facts, सब कुछ बोल रहा मैं हक से। नशा है बुरी चीज अभी भी छोड़ दो वक्त से, होना है ड्रग फ्री, छोड़ो बुरी संगत, बना लो खुद को बदलने का तुम मन अब। याद करो जब थे तुम खुश बहुत, नशे से बढ़ चुका जिंदगी में दुख बहुत। सिंपल सी बात, सुबह करो मेडिटेशन, करो तुम वर्कआउट और करो रिलैक्सेशन। बंद करो नशे, कुछ मिलता नहीं ड्रग्स से, सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। बंद करो नशे, कुछ मिलता नहीं ड्रग्स से, सेहत भी खराब, बदनामी भी अलग से। थैंक यू राजीव जी, ये प्ले करने के लिए। मैं नॉस्टैल्जिक हो गई हूँ कि कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पहुंच गए। Thank you. Thank you, Nikita Sood madam, for a nice effort by the student also. I hope the student motivated and he's doing excellent now also. Okay, so sir, do I propose vote of thanks then? Dr. Rakesh sir. आप कर दिए, प्रपोज कर दो आप वोट ऑफ थैंक्स फॉर्मल, Okay, then so we'll any, finish the uh, session. so there is no comment from any participant. Madam, this your presentation are very informative and very well presented to these participants. So there's no questions on that. So thank you, Nikita Sood ma'am, for these presentations. We are honored to have you today for this webinar series of Cypher. And we will even ask you to do and continue these efforts in other areas and other locations also, wherever you are working. And we want more case studies similar to this in coming days, in coming futures. First of all, thanks, big thanks to the team of Tribune also, those who take this initiative forward and make the Tribune School as a
tobacco-free school for some time. Thank you, and thanks to the participants who join us today for this very important informative presentation. And I hope you get some idea how to implement these type of small intervention at school level. And maybe you can try with your nearby school to do these type of interventions and makes at least few schools as tobacco-free schools. I know all schools are tobacco-free only, but you can educate the students and the category of students, those who are maybe affected by these tobacco use and some other habits. So you can try for that also in these way. So thank you, participants, and thanks to the organizing team, our lead, Dr. Rakesh Gupta sir. Thank you, Dr. Rakesh Gupta sir, for leading the process and organizing this very important webinar. And thanks to the other team, Eco India team, and Mr. Verma sir from the Cypher, who is supporting this whole process in a way. So thank you, everyone. And Thank you all. Thank you. Thank you. okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, everyone.